کہ جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ کون ہے؟ میرا شوہر. شوہر ہے. شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میری شادی کو 10 سال ہو گئے. میں 12 سال کی ایج میں میری شادی ہوئی تھی. 12 سال کی ایج میں 12 سال کی بچی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں نازیہ، 3 بچے ہیں، بیٹیاں کتنی بیٹے کتنے؟ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے میری. 2 بیٹے ہیں. بیٹے کتنے کتنے ہیں ماشاءاللہ سے؟ میرا 9 سال کا بیٹا ہے اور 7 سال کا بیٹا ہے اور 4 سال کی بیٹی ہے میری. 4 سال کی بیٹی ہے. نازیہ، کس نے مارا؟ ویڈیو ایک دیکھی جا سکتی ہے جو ہم آپ کو پروگرام میں دکھائیں گے بھی. اس ویڈیو میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ نازیہ کا فیس پورا لہو لہان ہے اور بڑا تشدد آمیز انداز میں جیسے کسی نے یوں برچھی یا کوئی چیز ماری ہے جس سے یہ سارا ماتھا پھٹ گیا ہے، کٹ گیا ہے، سٹیچز لگے ہوئے ہیں، منہ سوجا ہوا ہے. نازیہ کس نے مارا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ یہ میرے تسلی سے حوصلہ لے کے آہستہ آہستہ بتائیں. میں 1 سال سے میں اس ٹارچر کے اندر ہوں. ویسے تو جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے ہی میرے سسرال والے سب لوگ بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہوتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، کیونکہ میری جو بھابھی ہے وہ میری نند بھی ہے. وٹا سٹا ہے. جی وٹا سٹا اس طرح سے. تو جو بھی پرابلم میرے بھائی کے گھر ہوتی تھی پھر اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا ہوتا تھا. تو ٹارچر بہت زیادہ ہو چکی تھی تو میں اپنے امی کی طرف آ گئی تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے پھر ان لوگوں نے یہاں پہ مجھے سکون سے رہنے نہیں دیا کیونکہ یہ امام مسجد تھے میرا ہسبینڈ. عورتوں میں اور آدمیوں میں فرق نہیں سمجھتا ہوتا تھا. بہت زیادہ معاملات تھے جو کہ میں بتاتی بھی کسی کو تو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ہماری امی لوگ بہت شریف غریب لوگ تھے. تو ماں باپ کی عزت کے لیے جو بھی ہوا میں برداشت کرتی رہی. یہ میرا ہسبینڈ مجھے زبردستی جابس پہ لگواتا ہوتا تھا کہ مجھے پیسے چاہیے، جہاں سے مرضی مجھے لا کے دو. میرا جہاں سے مرضی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کچھ بھی کرو مجھے پیسے لا کے دو. ٹھیک ہے. اس طرح سے. تو اور لوگوں کے سامنے ایسے رہنا کہ جیسے ان سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے. میں کسی کو چاہتی بھی بتانا تو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ ایک امام مسجد تھا، مولوی تھا، اس کے خلاف کچھ بولا بھی جاتا تو پھر میرے لیے برا ہوتا تھا. اسی لیے احساس کمتری ہونے کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتی تھی. شادی کتنے عرصے سے ہے؟ شادی کے اسٹارٹنگ سے پہلے دن سے ہی سب اسٹارٹ ہو گیا تھا کہ دہیج نہیں لے کے آئی اور کہ بھئی بھوکے ننگے لوگ ہیں اس طرح سے. اچھا نازیہ، جہیز کا دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو ایک طرف آپ بتا رہی ہیں کہ وہ امام مسجد ہیں اور دوسری طرف وہ جہیز کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں. وہ صرف مسجد امام لوگوں کے سامنے ہے، گھر میں کیا ہوتا ہے اس کا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ سب بہت زیادہ ٹارچر کرنا اور یہ سب. امام مسجد تو بہت معزز شخصیت کا نام ہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جن کی ہم تہہ دل سے عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جس دن جھگڑا ہوا ہے اس دن کیا ہوا تھا؟ یہ مار پیٹ اور محلے میں شور و غل، کیا اس دن کیا جھگڑا ہوا تھا؟ نہیں یہ ایسے تھا کہ اسٹارٹنگ سے تھا نا جب ان لوگوں نے بہت زیادہ حد کر دی. اصل میں میرے ہسبینڈ کا کچھ مسئلے مسائل اس طرح سے تھے کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے ہی بھانجے کی بیوی سے. ٹھیک ہے. ہاں جی. بھانجے کی بیوی سے؟ جی. اس نے اپنے بھانجے کی بیوی کی ڈیورس کروا دی تھی، اس سے شادی اس نے کرنی تھی. اس کی وجہ سے یہ مجھے زیادہ ٹارچر کرتا تھا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، تم آگے ہو، تم سامنے ہو. ٹھیک ہے. کہ تاکہ مجھ پہ بات نہ آئے، تم پہ آئے، میری عزت برقرار ہے. تو میں نے پھر اس کی کوئی بات نہیں رکھی. میں نے سب کو سب کچھ بتایا کہ جب میری شادی بھی ہوئی تھی اور اس طرح سے الٹی سیدھی ویب سائٹ سے نکال کے الٹی سیدھی ویڈیوز دکھانا اور اس طرح سے کہ تاکہ یہ لڑکی میں آنکھ نہیں بول سکتی کہ. ٹھیک. سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک. یہ ساری، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی عورت ہے یا کوئی آدمی ہے، اس میں وہ فرق نہیں سمجھتا. چھوٹی بچی ہیں جس طرح سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے لوگوں کو بتائی تو پھر یہ میرا دشمن ہو گیا. مجھے جگہ جگہ پہ اس نے ٹارچر کیا. پھر فیملی میں بھی آ گئی تو اس نے مجھے یہاں پہ بھی بہت زیادہ مار پیٹ کی اور لوگوں کو میری تصویریں دے دینی بلا فضول ہے. پھر وہ لوگ جو ہے نا غلط نظر رکھتے ہوتے تھے. اب اپنے آپ کو بھی یہاں پہ بچانا، محفوظ کرنا بہت ضروری تھا. ہم پھر خاموش رہے ڈر کے ہمارے کہ ہم کسی کو کیا بتائیں. پہلے بھی میں تھانے گئی تھی، نہیں سمجھ آئی، کسی نے نہیں سنی. پھر ہم لوگ نہیں گئے ڈر کے مارے کیونکہ یہ ہمیں ڈراتے ہوتے تھے، دھمکاتے ہوتے تھے کہ بھئی تم جاؤ. تھانہ کچہری پولیس سارے ہماری جیبوں کے اندر ہے. جیسا ہم. یہ کون کہتا ہے؟ میرا شوہر غلام مصطفیٰ.
गुलाम मुस्तफा, आपके शौहर कहते हैं थाने कचहरी मेरी जेब में है। जेब में है वो सारे, तुम जाके देख लो, वो सब मेरी पैरवी करेंगे, तुम्हारी नहीं। इन्होंने इस तरह से बोला था। तो जब हर तरफ से मामला बहुत बुरे हो गए थे तो फिर मैं घर से चली गई कि एक बार फिर से स्टैंड होते। मैं कोर्ट भी गई थी पहले, जब मेरे पास पैसे थे, मैं जॉब अच्छा, कर एक रही थी। एफआईआर दर्ज हुई थी जो ये हुई थी कि आप अगवा हैं, वो क्या मामला है? नहीं मैम, मैं कोई अगवा नहीं थी बिल्कुल भी, ये सब झूठ है। ये इसका मामला क्लियर ये है सारा कि इन लोगों के मारपीट करने की वजह से, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे किसी भी चीज के लिए कि मैं कुछ भी करती। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मैं अपने मामला कैसे देखूंगी? बगैर पैसों के इस पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। आप हौसला लें, आहिस्ता आहिस्ता बोलें। इसने जब तलाकें दे दी थी मैंने सुलह कर ली थी इससे। बाद में भी मेरे भाई ने कहा कि गुनाह का जिम्मा हमारा है, तुम सुलह कर लो। गवाह है मेरी अम्मी, मेरे बहनें, मेरी बच्चे, सब इस बात के गवाह हैं। इसने मुझे 3 तलाक दे दी थी जुबानी, लेकिन फिर भी इसने कहा कि भाई नहीं, मैंने जो है ना स्कूल लेके जाना। इसने फिर मुझे धमकियाँ लगाई कि अगर तू मेरी नहीं रही तो मैं तुझे कहीं का भी नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरी जुर्रत नहीं है कि तू अपने आप को महफूज कर पाए यहाँ पे। इस तरह से मुझे बोला। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद मैंने सुलह तो कर ली, लेकिन जब मेरी तनख्वाह आई इसने मुझसे पैसे लिए और ये वापस चला गया। बोला मेरी माँ कहती है कि जिसने आने इधर आए, नहीं आना तो बाहर में जाए, मैं अपने बेटे की शादी करवा। आप क्या नौकरी करती थी? मैं पहले जो है ना एक मॉल में जॉब करती थी, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर इन लोगों ने बर्गर और शवारमा के काउंटर लगवाए मेरे से, ये बेचती होती थी मैं सड़कों पे। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे गारमेंट्स का काम कर, जो पब्लिक वो होती है ना, बाजार होती है, रेगुलर बाजार जो उनसे होते हैं, इन्होंने फिर मुझसे वो लगवाए। उसके पैसे भी इन्हीं को जाते थे। शौहर ने? जी मेरे शौहर ने, किसी और ने नहीं, मेरे अपने ही शौहर ने। तो क्योंकि इसकी सैलरी बहुत कम होती थी और इसने कभी कहना कि मैंने बाइक लेना है, कभी कोई चीज़ लेनी है, कभी फ़ोन लेना है, कभी लैपटॉप लेना है, ऐसे। इसी वजह से फिर मुझे इसको। फिर ये सर कैसे फटा, वो सारा लहू लहान जो वीडियो बहुत फेसबुक पे वायरल है? मैं घर से चली गई थी कि अपनी, जब मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मेरी जेब में पैसे होंगे, फिर इसके बाद मैं कोर्ट कचहरी जाके अपने बच्चे भी ले लूंगी। और बच्चे इसी के पास थे? बच्चे इसी के, भाई ये गन पॉइंट पे लेके गया था हमसे लोगों को इकट्ठा करके। ठीक है। इसके साथ कुछ लोग थे, तो मैं वहाँ से चली गई। फिर मैंने मीडिया से हेल्प लेने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं पहुँच पाई मैं मीडिया तक। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कैसे पहुँचना है। फिर मैं लोगों के घरों में काम करती होती थी, रात में मैं बाहर सोती होती थी हॉस्पिटल के अंदर। आप चेक करवा सकते हैं उसके हॉस्पिटलों के अलग अलग, इत्तेफाक हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, और इस तरह दरबारों पे दिन में, मतलब जब काम मिल जाना कहीं पे तो मैंने कर लेना, जब नहीं होना तो फिर मैंने ऐसे वहाँ सो जाना। जी ऐसे पार्किंग्स में, जी ग्राउंड्स में। हाँ जी। बड़ी मुश्किल से फिर मुझे कहीं पे जॉब मिली और वो मैंने करने की कोशिश की तो वो भी नहीं कर पाई। इन लोगों ने पता नहीं क्या कुछ किया, मेरी बहनों को बहुत हिरासत किया, इनको धमकाया, डराया कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हमें वो ढूंढ के ला के दो, मेरी बहनों को। फिर मेरी बहनों ने जो भी किया, मुझे उस पर ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं उधर भी। फिर इन्होंने, जब मैं वहाँ पे गई, फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं, तुम लोगों के खिलाफ बयान दो कि भाई तुम्हें अगवा किया गया था। मैंने कहा मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। फिर इन्होंने मुझे जज के सामने भी पेश किया। मैं वहाँ पे भी गई और फिर मैंने वहाँ पे सब कुछ तफसीलन बात बताई। मैंने कहा सर मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मेरे घर के हालात और मामलात इस तरह से थे, मुझे मेरी फैमिली की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं थी। फिर ये लोग मुझे वापस लेके आए, मैंने कोर्ट पे बयान दी। जज शौहर आपको वापस लेकर आए? मेरे शौहर नहीं, मेरी सिस्टरों ने करवाया था ना कि भाई पता नहीं हमारी बहन की दर किस हाल में। जब उनको रियलाइज हो गया कि हमने अच्छा नहीं किया, हमें तो कम से कम करना चाहिए था। पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते थे पहले, हम डरते थे क्योंकि ये कहते थे कि पुलिस वाले ये सारे हमारी जेबों के अंदर है। और ये मस्जिद इमाम था, आपको पता है कि बिसाव जरे इसकी पहुंच थी इतनी, लोगों के बच्चे जो पढ़ाता था उनकी सपोर्ट की वजह से इसका था, तो हम डरते थे, हमें अपनी इज्जत बचानी थी और कुछ नहीं। लेकिन ये वापस ले सब कुछ हो गया, उसके बाद मैं घर आ गई।
मैं सुलह हो गई, वापस आ गई आप? हाँ, मैं अपने ठीक है। मायके में आ गई ना, फिर ठीक जज है, ने ठीक वो है। कर दिया कि भाई आप जहाँ मर्जी जहाँ जा सकती हैं, रह सकती हैं, आप अपना कमाएं, और जब आप अपने बाय स्टैंड हो जाएंगी, कल को आपके बच्चे आपके पास आ ये जाएंगे। आपको अदालत से मिल गया? जी, ये ठीक मेरे है। पास है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाती भी ठीक हो हूँ। गया। लेकिन फिर भी ये लोग आ गए उधर मेरे अम्मी के घर, मैं वहां पे भी सेफ नहीं थी, इन्हीं चीजों की वजह से मैं वहां से गई थी। फिर इन लोगों ने फिर दोबारा आके मुझे मारा, मेरे हस्बैंड थे, इनके साथ और भी कुछ लोग थे, इन्होंने मुझे आके मारा, और मैंने कहा कि अदालत से मुझे हो चुका है कि भाई मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती हूँ, तुम्हारे साथ उन्होंने मुझे नहीं भेजा, तुम गलत कर रहे हो। बोला इनकी धमकियां मुझे नहीं लगाओ तुम, ये पुलिस वाले ये लोग सारे मेरी जेबों के अंदर है, जैसे मैं कहूँगा वैसे होगा। ठीक है। इसने मुझे इस तरह से बोला और मुझे मारा, और जबरदस्ती घसीट के जा रहे थे मुझे ये लोग, ऊपर मेरे कपड़ा डाल के। बोला कि हम इसको जान से मार देंगे। फिर बहुत ज्यादा चिल्लाने के बाद मोहल्ले वाले आए, इन्होंने मुझे छुड़वाया। फिर लोगों ने, मोहल्ले ने छुड़वाया? जी, मोहल्ले वालों ने छुड़वाया मुझे। ये आपका सर्वर जो फटा हुआ है सारा, ये सब उस दिन की बात है? जी, ये कल की बात है ये सारी। ठीक है। तो ये फिर सब कपड़ा डाल के कहाँ घसीट के लेकर गए? ये घसीट के लेके जा रहे थे, मैंने शोर डाल दिया, वो माले मकान खड़ी हुई थी, तो उन्होंने शोर किया, लोग इकट्ठे हुए, तो फिर ये लोगों ने मुझे छोड़ के भागे, मैं मार रहे थे मुझे, तो मैं कहाँ छोड़ के भागे? सड़क में? नहीं, सड़क में नहीं, घर के अंदर ही, क्योंकि मैं इनसे छुड़वा के मैं कोने में चली गई थी ना, हमारे छत का घर है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पुलिस को फोन नहीं किया 15 पे? जी, मैंने 15 पे कॉल की, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ इशू है यहाँ पे, और इस तरह से कोई चीज़ कि भाई आप खुद थाने आ जाओ। लेकिन नीचे वो लोग सब खड़े हुए थे, मैं हमारे मालिक मकान ने उनको घर से निकाला, और जना निकाल के कुंडियाँ लगा दी सारी, और उन्होंने बोला बाहर निकलो, बाहर आओ। वो साथ वाले जो हमारे मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी, उनके घर से आने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हमारे घर में दाखिल नहीं होना। इस तरह से फिर पुलिस आई, तो फिर ये मुझे लेके गए। और कितनी कॉल्स की पुलिस को 15 पे? मैंने भी की थी, 3-4 और लोगों ने भी की थी। और कितनी देर के बाद पुलिस आई? तकरीबन कोई 9 बजे का वाकया था, और ये शायद 12 बजे तक आई। यानी कि आई आपके पास तकरीबन 10, 11, 12, 3 घंटे के बाद 15 की कॉल का रिस्पांस था। अच्छा, ये बताइए कि फिर उस दौरान आप उसी तरह लहूलुहान पड़ी रही? जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर वो लोग थे, बाहर लोग थे। जी। ठीक है। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने क्या किया? फिर पुलिस मुझे अपने साथ ले गई। ठीक है। कहाँ? वो थाने में। ठीक है। फिर वहाँ पे उन लोगों ने मेडिकल करवाया, मेरे मेडिकल भी हुआ। ठीक है। मेरी कंप्लेन भी वहाँ पे लिखी जा चुकी है। ठीक है। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। दोबारा किसी ने पुलिस से, कोई थाने से राब्ता हुआ आपसे? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर अस्पताल कैसे पहुंची आप? मेरी सिस्टर लेके आई थी मुझे। ठीक है। मारी क्या चीज थी यहाँ पे? हेलमेट मारा था और डंडे थे उनके पास। डंडे थे और हेलमेट मारा? हाँ जी, वो अभी भी मेरे घर पे है। कौन आपके घर पर है? मेरी अम्मी के घर पे। वो डंडे और हेलमेट? हाँ जी। पुलिस ने वहाँ से बरामद नहीं किया? नहीं, मैंने कहा था उनसे।